السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو بیسٹ ناولس، ناول یقین محبت کے ایپیسوڈ نمبر 16 سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوپہر میں اسے چھوڑتے وہ لاک کرنے کا بولتے چلا گیا تھا۔ شام محسوس کرتے وہ اس گھر سے وحشت سے محسوس کر رہی تھی۔ یہاں تو ٹی وی بھی نہیں ہے۔ نور نے نظریں دوڑاتے بے بسی سے واپس بیڈ روم داخل ہوتے ڈالی تھی۔ کوئی کام نہ دیکھتے اپنے کپڑے دیکھنے لگی۔ بے ساختہ اس کا جملہ یاد آیا، نور تم تو نہاتی نہیں ہو۔ یہ وحشت، نور کپڑے تو کل سے تم نے ایک ہی پہنے ہیں۔ کاش کہ میں بابا کے گھر سے نکلتے ایک دو سوٹ ہی رکھ لیتی اپنے۔ وہ سوچتے بیڈ سے اٹھی تھی، نظریں اس کی کبٹ پر تھیں۔ کینچی نکالتے بال جوڑے کی گرفت میں کرتے، وہ نچلا لب دانتوں میں دباتے کبٹ کے ہینڈل پر رکھتے دل سے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ویسے خوفزدہ تھی جیسے وہ سامنے ہو اور اس کی نظریں اسی کی حرکات پر مرکوز ہوں۔ اس کے آنے سے پہلے میں اپنے کپڑے پہن لوں گی۔ وہ پرسوچ ہوتے اس کی سفید ٹی شرٹ ایک ادھر ٹراؤزر نکال گئی تھی۔ دھڑکتے دل سے اس کے کپڑے تھامتے وہ واش روم میں بند ہوئی۔ اپنے کپڑے واش کرتے 20 منٹ بعد شاور لیے وہ گیلے بالوں سے باہر نکلی تھی۔ وہ الجھتے قدم اس کے بلو لمبے ٹراؤزر میں سنبھالتے بمشکل بیڈ تک پہنچتے، پائچے فولڈ کرتے شیشے کے سامنے گئی تھی۔ اس کی ٹی شرٹ کافی کھلی سی تھی، گھٹنوں تک تھی۔ نور نے چیمتے اپنا عکس مرر میں دیکھا، یکدم حواس جانے لگے تھے۔ وہ اس کے آئین پیچھے تھا۔ وہ حیرت سے ہوش میں آئی اور چیختے بری طرح اسے ڈرا چکی تھی۔ اس کی کمر سے تھامتے اس کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یہ گھر ساؤنڈ پروف نہیں ہے کہ مجھے سوسائٹی کے ہاتھوں مصیبت میں ڈالنا ہے۔ اس کی اڑتی گرتی پلکوں پر نمی کے قطرے دیکھتے وہ اپنی ہتھیلی کے نیچے دبا۔ اس کا چہرہ دیکھتے کان میں ار آیا تھا۔ وہ سانس بند ہوتا محسوس کر رہی تھی، آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ جہنوز اسی پوزیشن میں اسے تکتے کنفیوز کر رہا تھا۔ چیخو گی تو نہیں اب؟ وہ لمحوں کے اظہار سے نکلتے بولا۔ وہ نمی میں سر ہلا گئی تھی۔ اس کے بالوں کے نم قطرے اس کے چہرے پر پڑتے اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیتے۔ وہ اسے مزید قریب کر گیا تھا کہ دونوں کی سانسیں اس کے چہرے سے الجھنے لگی تھی۔ اس کی کمر کے گرد حصار باندھتے اسے نزدیک کر گیا تھا۔ مجھ پر حق نہیں جتاتی، میری چیزوں پر کیوں حق جتاتی ہو؟ بوجھل سے لہجے سے وہ آوازوں میں لوٹی تھی۔ اس کے بالوں سے آتی اپنی شیمپو کی مہک میں گہرا سانس بھرتے وہ اس کے سراپے پہ نظریں ڈالتے سوالیہ لہجے میں بولا تھا، جو اس کی سفید ٹی شرٹ میں کڑی لب کچلتے اس کے اظہار میں تھی۔ تم انسان نہیں، میری جان ہوگے تم۔ کانپتے لہجے میں اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش میں باتوں کو بدلنے کی صحیح میں تھی۔ اس کی اس طرح کی انٹری پر وہ واقعی ہی خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ پھر بچ کے رہنا نور، سیریسلی آئی ایم اے بیڈ بوائے، کھا جاؤں گا تمہیں۔ اس کی کان کی لوپ پر جھکتے وہ سلگتے لب سے اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گیا تھا۔ اس کا لہجہ مسکراتا تھا، اندازہ اس کی سنجیدہ بڑھتی کالی آنکھوں میں دیکھتے ہوا تھا جس کے کنارے مسکرانے کی کوشش کو ناکام کرنے میں محو تھے۔ دراصل میرے کپڑے گیلے ہو گئے تھے تو اس کی گرفت نہ پاتے کھسکتے دور ہوتے گھبراتے لہجے میں جواب دیتی کہ وہ اس کی پہنی شرٹ کے گلے میں انگلی اٹکاتے قریب کر گیا تھا۔ دل چاہ رہا ہے آج ریسٹورینٹ میں جیسے تمہارا سانس بند ہوا تھا نا، اس سے بری طریقے سے تمہارا سانس روک دوں، کیا خیال ہے؟ کیونکہ باتیں بہت اچھی بناتی ہو تم بھی۔ اس کی سرگوشی میں ڈلتی آواز سے وہ کانوں سے نکلتے دھوئیں سے بجھکا کے رہ گئی تھی۔ وہ جھکتا کہ وہ پرے ہوتے دیوار میں مرر سے لگتے لرزتے بدن سے آنکھیں موند گئی۔ ریلیکس، کچھ نہیں کرنے والا، تھپڑ یاد ہے مجھے۔ وہ سرخ سی ہوتے اس کو دور دیکھتے مسکراہٹ کا گلا گھونٹ گئی تھی۔ ڈیڈ کی طرف ڈنر ہے؟ وہ جب پلٹا تھا تو اس کو خود سے مسکراتے دیکھ حیران ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے رنگ مختلف سے تھے۔ میں کہہ رہا ہوں ڈیڈ کی طرف ڈنر ہے ہمارا۔ وہ لب دبا گئی تھی۔ ان کپڑوں میں دوپٹہ نہ ہونے پر اس کی نظروں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم کوئی جواز دے دینا، ویسے بھی پاگلوں کی سردار لگ رہی ہو۔ ہاں، اس کا کمپلیمنٹ کم مذاق واضح تھا۔ نور منہ کھولے اس کی دلچسپی بھری نظروں سے خائف ہوتی مٹھیاں بھیج گئی تھی۔ میرے حسین خیالات سے نکلو تو کبٹ چیک کر لینا۔ اس کی بات پر ناقابل فہم تاثر دیتے اس کو واش روم میں جاتا دیکھ رہی تھی۔ کبٹ کھولنے پر اسے شاپنگ بیگ دکھا۔ وہ تھامتے بیڈ تک آئی۔ کھولنے پہ سیاہ رنگ کی نفیس شرٹ جس کے پر گولڈن کام تھا اور گولڈن کیپری ہم رنگ سیاہ دوپٹے کے ساتھ تھی۔ وہ ہیوی ڈریس دیکھتے حیران تھی لیکن وہ کوئی بھی نقص نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ وہ کب لایا؟ شاید آتے ہوئے، کیونکہ کبٹ میں اسے نظر نہیں آیا تھا۔
वो चेंज करना चाह रही थी। कपड़े थामते वो वॉशरूम की सीम देख रही थी, जहाँ से वो चीनी की तरह कभी भी नमूदार हो जाता। आह नूर, हरगिज़ नहीं, वो इंतज़ार करने लगी थी। वो शावर लेकर निकला तो वो नज़रअंदाज किए कपड़े देते वॉशरूम में बंद हुई थी। कपड़े चेंज किए वो मिरर के सामने थी। बाल सुलझाते, कैचर में जकड़े मेकअप की कोई चीज़ पास न होने की वजह से वो खास चेंज अपनी शक्ल में नहीं महसूस कर पाई थी। चले, उसकी आवाज़ से पलटते नरम से नज़रें अपने सरापे पर मरकूज महसूस कर चुकी थी। दुपट्टा दुरुस्त करते इसे अपनी अब जिंदगी अब खूबसूरत सी महसूस हुई थी। वो अपने बाप की गाड़ी पर था। शुक्र था गाड़ी थी, नूर सुकून थी। गाड़ी उसके बाप के घर रुकी थी। उसके साय से दरवाज़ा खोलते हुए उसके हम कदम हुई थी। लाउंज में वो उसके इंतज़ार में थे। मैंने तुम्हारा रूम सेट करवा दिया है नूर, आप फ्रेश हो जाओ, हमदान साहब ने मुस्कुराते कहा। मैं गाड़ी आपकी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं? हम रुक नहीं रहे। वो साफ लहजे में बोला। ना तो वो अपनी माँ पर बोझ बनता था, ना ही बाप पर। नूर देखते रह गए। अजीब रौकन सी फैमिली थी। खासियान, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, वो नरमी से मोहब्बत समझ बोले थे। मैं वॉशरूम जाना चाहती हूँ। नूर दोनों की गुफ्तगू से अनजान बनती चली गई थी। वो इस रूम का समझाते खुद उसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गए थे। वो चेहरा धोते नम चेहरे से बाहर आई थी। भूख शदीद लगी थी पर झिझक थी। मुलाजिम के बुलाने पर वह तमीज़ का मुजाहरा करते नीचे डाइनिंग पर आई थी। जहाँ वो उसके इंतज़ार में थे तो मुलाजिम मुख्तलिफ डिशेस टेबल पर लगा रहे थे। वो देखती रह गई, जहाँ 3-4 किस्म के सालन, बिरयानी और मुख्तलिफ लवाज़मात थे। जैसे वो तो सदियों की भूखे हो। खैर, उसके ससुर की खास जिम्मेदारत पर वो दाद दिए बिना न रह सके। खाद्यान्न के बराबर झिझकते चेयर कहीं थे, वो बैठ गई थी। नू, ये सारे डिशेस ट्राई करो, मेरा कुक तुम्हारे कुक से खासा अच्छा है। वो खाद्यान्न को देखते हुए माली लहजे में बिरयानी की डिश उसकी जानिब खिसकाते बोले थे। नूर क्या बताती, वो डाइट कॉन्शियस हमारा उसे बेरुखी फीकी खिलाता था। वो उसकी प्लेट की जानिब देखती रही, जो बीफ का सालन खुश्क रोटी के साथ खाने में मसरूफ़ था। वो खामोश बैठी थी, जो उसे अकेले छोड़ते जाने कहाँ चला गया था। और उसकी माँ को हरगिज़ नहीं पता चले कि वो मेरे साथ है, ख्याल रखना। वो उनकी ज़ुबान दराज़ी से वाकिफ़ थे। पहुँचा लेती वो अगर उसकी जॉब कभी पता चला। नूर सोचती रह गई, वो उससे तो जैसे बड़ी बेतकल्लुफ़ थी जो उसे बताती। जी अंकल, वो धीमे से बोली। वो सर हिला गए। आप चाय या कॉफ़ी लेंगी? कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद उसकी जानिब से चुप्पी पाते वो फिर से पूछते बोले। हम निकलते हैं डैड, अब रात काफ़ी हो गई है। रुक जाते तो बेहतर था, वो ठंडी राह भर गए थे। फिर कभी सही, वो नूर से महू गुफ्तगू थे जो जाने किस चीज़ पर इनकार कर रही थी। नूर, मैं वेट कर रहा हूँ। उसकी आवाज़ पर वो सर हिलाते उनके हाथ में थामी चीज़ बार बार इसरार पर ले गई थी। गहरी अंधेरी सड़क थी। वो लब नीचे ड्राइव करने में मसरूफ़ था। गाड़ी झटके से रुकी। वो ख्यालात से निकलते पेट्रोल पंप पर देखते शीशा ऊपर कर गई। सर, 2000। वो शीशा नीचे करते वॉल्ट खोल रहा था। कैश नहीं है, कार्ड चलेगा। वो क्रेडिट दे रहा था। उन्होंने नज़रें उस जानिब उठाई। श्योर, वो कार्ड लेते अंदर चला गया था। सॉरी सर, ये अमाउंट नहीं शो कर रहा, ये नहीं चल रहा। वो चंद लम्हों बाद कार का शीशा नॉक करते वापस थमा चुका था। चेक करो क्यों नहीं चल रहा, ये तुम लोगों की मशीन में इशू है, चेक इट अगेन। वो माथा मसलते स्टीयरिंग से हाथ हटाते परेशानी से बोला था। अच्छी खासी अमाउंट थी उसमें। सर, हमने ध्यान से चेक किया है, मशीन में कोई इशू नहीं है। नूर ने उसकी जानिब देखते ही गोद में पड़े फोन का कवर हटाया था। ये लो। उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ, जो हाथ में पकड़े पैसे उसकी जानिब बढ़ा रही थी। वो 5,000 के दोनों नोट जो हमदान साहब ने उसे अपने घर आने पर दिए थे, उसकी जानिब बढ़ाते बोली। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन भी आनी थी। उसकी पेस में तो उसका खाता भी गवर्नमेंट ब्लॉक कर चुकी थी। वो आंखें बंद करते मुट्ठी बंद कर गया। वो नोट डैशबोर्ड पर रखते रुख शीशे की तरफ कर गई। गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ पर पुरसुकून हुई थी। रिहा, ठीक हो तुम? वो काउच पर था। जब से डाइनिंग टेबल से आए थे उसे बेचैन से चक्कर लगाते देख रहा था। हाँ जी, वह बोलते तेज़ी से वॉशरूम की जानिब गई थी। वो डॉक्यूमेंट समेटते ड्रेसर पर रखते उसके हरकत नोट करते अब परेशान सो गया था। उस तक जाता कि वह निठालते वॉशरूम से बाहर आए थे। रिहा, इतना तो तुमने खाया नहीं जितनी बार तुम वॉमिट कर चुकी हो। वो बिस्तर पर बैठते खुद को नॉर्मल कर रही थी। वो उसके बारे में यकीन हो गया था, ये सब हरगिज़ आसान नहीं। पिछले 4 हफ्तों में से ये यकीन हो गया था, ये पीरियड बहुत मुश्किल है। रिहा, डॉक्टर के पास चलें। वो बिस्तर पर उसके नज़दीक बैठा था। हाँ, मुश्किल है ये बहुत मुझे। वो कुर्ते सांसों से अभी संभली नहीं थी कि फिर से वॉशरूम की जानिब भागी थी।
अब की बार बेसब्र वो उसकी पूछत पर उसकी कमर से हिला रहा था। उसके फ्री होने का वेट करते वो उसके साथ ही था। चेहरा धोते वो बेसन पर अभी भी नम आंखों से बेहाल सी चुकी थी। मैं मम्मा को बुलाऊं? ये ठीक नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे। उसका हाथ थामते वॉशरूम से लाते वो बेड पर बिठाते उसके बिखरे बाल कान के पीछे उड़ेसते बोला था, मैंने कहा था मेरा नहीं दिल कर रहा था डिनर को, आपने बड़ी मम्मा ने ज़बरदस्ती की ना। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। वो सर मसलते उलझी तबीयत से रूहानी सी हो गई थी। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है ना कि तुम खाओगी। यार प्रॉपर डाइट तो ज़रूरी है ना तुम दोनों के लिए। उसका कंधे से झूलता दुपट्टा उससे अलहदा करते परे कर चुका था। आप सिर्फ अपनी चलाते हैं, आप नहीं जानते ये पीरियड बहुत मुश्किल है। हाँ, वो उसके नज़दीक होते उसके कंधे पर सर रख गई थी। जन्नत भी तो तुम्हारे कदमों में ही होगी ना। उसके बालों पर लब रखते वो कदर मोहब्बत भरे अंदाज में बोला था, मैं जूस लाता हूँ। वो तक उसका हाथ थाम चुके थे। हरगिज़ नहीं, दिन को जूस, रात को जूस, दोपहर को जूस, इसके अलावा भी ज़िंदगी है, जूस ही ज़िंदगी नहीं है। वो बिगड़े मुंह से बोली थी, यहाँ तक कि उसके फेवरेट जान जिंदगी और बकौल उसका नशा चाय भी छूट चुकी थी। आहान महज मुस्कुराया था उसकी बेहंगम सांसों की हलचल में होती गुफ्तगू सुनते। मम्मा को बुलाऊं अगर तबीयत नहीं स्टेबल तो? वो उसके चेहरे पर इस तरह अब कैसा अभी भी महसूस कर रहा था। नहीं, इनको इस टाइम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, मैं बस सोने की कोशिश करती हूँ और नॉर्मल बात है ये। वो उसके शाने से सर हटाते दोनों टांगे ऊपर करते तकिए पर सर रखी थी। बंद आंखों से इसने उस शख्स का लम्स अपने पेश आने के बाद आंखों पर महसूस किया था। वह पुरसकून होने की कोशिश करने लगी थी। हाँ, सुबह होने वाले केस के डॉक्यूमेंट्स लेते सोफे पर आ गया था ताकि वो मज़ीद डिस्टर्ब ना हो। वो फ्रेश होते वॉशरूम से आया तो वो अभी भी बिस्तर में पड़ी थी। पूरी रात उसने जागते सोते गैप में गुजारी थी। वो शर्ट पहनते, परफ्यूम खुद पर स्प्रे करते, घड़ी पर नजर डाल के जहाँ 8 बजने वाले थे। कपलिंग्स बंद किए, टॉय की नॉट दुरुस्त करते, कवर से हैंग किया कोट थामते वो उसके नज़दीक आया था। वो इस लम्हे गहरी नींद में महू थे। लंबे से बाल बिस्तर और तकिए पर बिखरे थे। उफ रिहा, इस टाइम तुम मेरी चुड़ैल हसीना का मंजर पेश कर रही हो। वो इस पर झुका था, उसकी नाक से निकलती गर्म सी सांसें महसूस करते। उसके अनाब लब जरा से मुस्कुराहट में डले थे। साइड से अपना सेल फोन उठाते उसके चेहरे के करीब ले गया था। उसकी पेशानी पर नरमी से लब रखते हुए उसके नज़दीक से उठता कि वो हाथ थाम गई थी। मैं नहीं उठ रही हूँ, सोऊंगी मैं। वो कसमसाते करवट लेते माथे पर तेवरी चढ़ाते बोली। आहान ने अप्रोच खाई, उसे नींद में बीजेपी करते ही कि उसे उठा न दे। तुम और तुम्हारी नींद मौके मिल गए हैं तुम्हें, बेफिक्र रहो, नहीं उठा रहा। रूम की जल्दी लाइट ऑफ करते वो खुद कलामी करते दरवाज़ा बंद किया बाहर आ गया था। वो कोट डाइनिंग की चेयर पर रखते किचन में होते बर्तनों के शोर से उस जानिब किया था। वो अपनी माँ को समझते किचन में आए, जहाँ किचन में खड़ी दानी नजर आई थी। वो उसकी जानिब पलटते देखने लगी। मम्मा कहाँ है? वो इस्तेफाम या लहजे में बोला। आंटी शायद रूम में है, वो नजरें उस पर डालते बोली। ठीक है, बोलते वो किचन से निकलता कि उसकी आवाज़ कानों से टकराई थी। सुने, वो उसकी आवाज़ से पलटा था। आप इन्हें नहीं जगाएं, शायद वो सो रही हैं। मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी, आपके लिए भी बना दूंगी। नहीं, मैं इनसे मिलना चाहता था, नाश्ता लेट ऑफिस से आकर करूँगा। वो ठंडे लहजे में जवाब दिए किचन की दहलीज से निकलता चला गया। एरोगेंट, वो बोलते अपने लिए सैंडविच बनाने के लिए सैंडविच मेकर का स्विच लगाते मसरूफ़ हो गई थी। हाँ बेटे, जा रहे हो तुमने नाश्ता नहीं करना था? सानी के बेगम की आवाज़ से पलटते वो लाउंज के दूर से निकलते इंतकाया था। ऑफिस में कर लूँगा मम्मा, फ़िलहाल दिन नहीं जा रहा, वो उनको मुतमईन करते बोला। रिया नहीं उठी, अभी तबीयत ठीक है उसकी। वो उसके साथ ही उठती बल्कि उसका नाश्ता वही बनाती थी। वो तशवीश ज़दा हो गई थी। नहीं, इसे अभी नहीं जगाएगा, रात सही से सोई नहीं, वो मैं निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खैरियत से जाओ। दानी ने किचन से अपनी प्लेट थामे निकालते अब रोज खाई थी। आपकी एक बहू तो दुनिया से अनोखी माँ बन रही है। ऐसा भी कुछ खास नहीं है, आपने भी सिचुएशन फेस की, मैं भी इस सिचुएशन से गुजर रही। पर यह भाभी तो कुछ ज़्यादा ही नाजुक मिजाज है। बदल के बाद को लफ्ज़ों की ज़ुबान देते सानी बेगम से मुखातिब हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं है, वो जल्दी उठ जाती है, शायद तबीयत ठीक ना हो। सानी बेगम ने बात पढ़ ली थी, वह पहलू बदलती रह गई थी। 10 बजे उसकी आँख खुली थी। शिट, हाथ चला गया, पता नहीं नाश्ता किया था या नहीं। सोचते साइड टेबल पर पड़ा फ़ोन चेक करने लगी थी। मोबाइल डाटा ऑन करते व्हाट्सएप के यूनिवर्सिटी ग्रुप के ढेरों मैसेजेस के अलावा उसका टेक्स्ट नज़र आया था।
कल की पिक्चर थी। वो हैरत ज़दा सी लोडिंग के वेट में थी। वो मुँह खोले देखने लगी। ज़ूम करने पर पता चला वो उसकी सोती हुई की पिक्चर थी। सोती हुई चुड़ैल उड़ते रूम से हुलिया संवारते बाहर जाना और शराफत से नाश्ता करते हुए अपनी पिक्चर सेंड कर देना मुझे। उसके हंसने वाले इमोजी के साथ टेक्स्ट था, या अल्लाह मैं सोती हुई इतनी बुरी लगती हूँ कैसे कैसे, मतलब आन ने मुझे ऐसे देखा। उफ, यह कुछ सदमा ही तो लगा था। अब खुद की तबीयत कदर बेहतर महसूस हुई थी। वो फ्रेश होते आई, बालों को चुटिया में बांधे दुपट्टा दुरुस्त किए वो बाहर निकली थी। वो किचन में हरगिज़ नहीं जाना चाह रही थी। मुलाजमा को नाश्ता का बोलते और फ़ोन थामते वो काउच पर आ गई थी। अपने पेपर्स का स्केड्यूल देखने लगी। मैं पेपर कैसे दूंगी सोचते दिल हौलने लगा था। जहाँ फाइनल पेपर की डेट शीट उसे मुँह चिढ़ा रही थी। मुलाजमा नाश्ता रखते चली गई। वो सोचे झटकते फ़ोन का कैमरा खोलते पिक्चर लेती कि अजान वहाँ आ गया था। ये क्या कर रही हो? वो हैरत होते वही काउच पर उसके नज़दीक बैठ गया। पिक्चर लेने की कोशिश, डिस्टर्ब नहीं करना, आप वहाँ के दिखाते बोली। माय गॉड, तुम वाकई पागल हो गई हो रही। डोंट से, अब तुम ये पिक्चर लेकर स्टेटस लगाओगे हैशटैग हैंग आउट विद माय नाश्ता मॉर्निंग वॉक्स हो। हंसते बोला। रिया ने खूनखार नज़रों से देखा था। हंसने वाली कोई बात नहीं, वैसे मुंह बंद रखो अपना। वो पिक्चर लेने का इरादा तय कर चुकी थी। अब अगर वो जान जाता अहान को सेंड करनी है तो मज़ीद रिकॉर्ड लगाता है। ऐसे होने नहीं देना चाहती थी। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप दोनों। रिया भाभी मुझे भी ऐसा लतीफ़ा सुना दें जिस पर खासा हंसा जा रहा है। रिया ने दानिन की जानिब देखा था जो जाने कब आई थी। सामने तंज भरे लहजे में बोली थी। उसकी मुस्कुराहट सिमट सी गई थी। उसका रवैया खासा उखड़ा उखड़ा सा होता था अब जो इसकी समझ से बाहर था। दानिन क्या तरीका है ये? अजान उसके रवैये से दिन ब दिन परेशान था। वो समझता था ये मूड स्विंग्स है। वो नरमी बरतता था पर अब उसकी बदतमीजी खलती थी। तुम चुप रहो तो बेहतर है, वो उंगली दिखाते खूनखार लहजे में वार्न कर चुकी थी। मैं जाती हूँ। रिया नज़रअंदाज किए नाश्ते की प्लेट उठाती उठी थी। कहाँ जाती हैं? यहीं रहना। मुझे देखकर भाग क्यों रही हैं जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ी है? वो सामने आ चुकी थी। वो खासी हैरान हुई। वो कहना क्या चाह रही थी? कैसी चोरी? मैं क्यों भागूंगी दानिन, मैंने कहा है मैं बस रूम में जा रही हूँ। वो लहजे में आई नागवारी कम करते बोले थे, वरना दिल चाहता सुना डाले। दानिन रूम में आओ। अजान ने दांत पिसते हाथ थामना चाहा था जब वो छुड़वा चुकी थी। डिस्कस्टिंग हो तुम अजान सिकंदर। मुझे इग्नोर करना, उससे मुस्कुरा के बातें करना, ये सब तुम्हें पसंद है। मेरे लिए तुम बिजी हो। तुम्हारी यूनिवर्सिटी, तुम्हारा ऑफिस, लेकिन इस तरह तुम्हारा टाइम बिल्कुल नहीं ज़ाया होता, राइट? मैं ही नहीं समझ पाई तुम्हें। वो ज़हरखंद होती जा रही थी। दानिन शट योर माउथ। वो खासा तेज आवाज़ में सामने खड़ी रिया की गैर होती हालत देख रहा था। पता है तुम्हारे शौहर ने मुझे अपने फ्लैट में इसके साथ देखते क्या ताना दिया था? रिया ने बमुश्किल कदम ज़मीन पर जमाए थे। मुझे अपनी इज्जत का ख्याल होना चाहिए, ये तो मर्द है। तुम बताओ, तुम्हें नहीं वो ये मशवरा देता? या फिर आप दोनों मियाँ बीवी दूसरों को ही परसाई का लेक्चर देना चाहते हैं? इस लम्हे ज़िल्लत और अहानत से उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। दिमाग की नसें फटने वाली होती। ये सारी बातें उसने उस शख्स के सामने कर दी तो दानिन अजहान हाथ उठा चुका था। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसे लगे आपको एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।